नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली इलाके में घर में मानव के 2 खोपड़े मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस। सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 नंबर वार्ड सुभाषपल्ली इलाके में दीनबंधु महेंद्र सारणी के रहने वाले खोका चक्रवर्ती के घर में आज मानव के 2 खोपड़ी और कुछ देहांश मिले हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की खबर सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को दे दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों खोपड़ी और देहांश को बरामद किया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दीनबंधु सारणी के रहने वाले खोका चक्रवर्ती की 15 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मृतक खोका चक्रवर्ती की पत्नी रेलवे में कार्यरत है। मृतक खोका चक्रवर्ती के घर में ही उनका भगना विक्टर चक्रवर्ती रहता है, जो पेशे से एक सुरक्षा गार्ड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विक्टर चक्रवर्ती मानसिक तौर पर बीमार है। वह सड़क किनारे जमा कूड़ा कचरा को उठाकर अपने घर में लाकर जमा करता था। कूड़ा कचरा को घर में जमा करने से उससे काफी दुर्गंध निकलता था, जिससे परेशान होकर 18 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद और वर्तमान कोऑर्डिनेटर निखिल साहनी आज विक्टर चक्रवर्ती के घर पहुंचे। निखिल साहनी ने अपने नेतृत्व में जब सफाई कर्मियों द्वारा घर की सफाई करवाई तो घर से मानव के 2 खोपड़ी एवं कुछ देहांश मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कुछ दिनों से विक्टर चक्रवर्ती अपने घर नहीं आया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने मानव के दोनों खोपड़ी और देहांश को बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस विक्टर चक्रवर्ती की तलाश शुरू कर दी है। अभी फिलहाल दोनों खोपड़ी किसके है, विक्टर के घर में कैसे आए, इस रहस्यमयी घटना में अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि दोनों खोपड़ी किसका है। वहीं विक्टर की तलाश जारी कर दी गई है। আমি কিছু দেখি নাই স্যার, আমাকে ঘাস পরিষ্কার করতেছিলাম, আমরা তো ভালো করে জানি না। পরিষ্কার করে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এই স্যারগুলো আসছে, আমার এই স্যার কাউন্সিলর আসার পরে দেখতেছি, তারপরে এই স্যারগুলা চলে আসছে, পুলিশগুলা। তো আমিও তো অত জানি না। তো তারপরে বলছে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াইছি। ওইখানে হাড্ডি একটা হাতের ওইটা ফার্স্টে বাইর হয়েছে, তারপরে আবার একটা হাড্ডি বাইর হয়েছে উপরে ছাতের উপরে। এটা আমি দেখি নাই, ছাতের উপরে তো কাজ দেখাই নাই আমাকে ওয়ার্ড মাস্টার। ছাতের উপরে এখন দেখলাম যে একটা মাথার ছিল আর এটা ছিল। ঘটনাটা তো আমরা সকালবেলা ঘটনাটা আমরা শুনতে পারলাম যে এখানে এরকম ব্যাপার। আর ওই ছেলেটা একটু মেন্টালিটি প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। ও হলো বেশিরভাগই বাড়িতে থাকে না, বেশিরভাগই বাইরে থাকে, মানে রাতে বিরাতে এরা ও বাড়িতে ঢোকেই না। তো জাস্ট হলো এগুলো শোনার পর এখানে আসলাম যখন, তখন শুনতে পেলাম এইসব জিনিস পাওয়া গেছে, দেহটেও পাওয়া গেছে, ঠিক আছে। তো এখন তো ও না থাকলে পরে তো আমরা এগুলো কোনো কিছু বুঝতে পারবো না। ও সামনাসামনি যদি অন দ্য স্পট থাকতো তাহলে আমরা সব কিছু বুঝতে পারতাম। আমাদের জুনিয়র হয়, মিশতে করার সমস্যা না সবার ও কারোর সাথে মেশতো না এখানকার। তাই না? এক টাইমে ও হলো পড়াতো, এখানকার জুনিয়রদের, আমাদের সবার জুনিয়রগুলোকে পড়াতো। তো মাঝখানে ওর মা মরে যাওয়ার পর ও একদমই মেন্টালিটি পুরা, ও একাই থাকতো। ওর মা আর ওর বাবা প্রথমে মারা গেল, তারপর ওর মা মারা গেছে। তো মা মারা যাওয়ার পর ওর মামিরা কেউ সাপোর্ট হয়তো ওকে করেনি, তার জন্য আজকে ছেলেটা এই অবস্থা। হ্যাঁ, পুরো বাড়িতে না, ওর বাড়িটা হলো ওই যে পিছনে যে একটা টিনের ঘর আছে ছোট, ওটাতেই থাকতো। কালকে আমাকে এই অঞ্চল থেকে আমাদের ওয়ার্ডের কিছু নাগরিক কমপ্লেন করেছিলেন যে এইখানে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বাড়াচ্ছে আর ছাদে পাতায় কিছু রাখা আছে। তাই তার কমপ্লেনের ভিত্তিতে সকালবেলা আমাদের পৌরসভার সাফাই কর্মীদেরকে এখানে পাঠায়। তখন এই বাড়ির মালিক হচ্ছে ভিক্টর চক্রবর্তী, সে আমাদের সাফাই কর্মীকে দেখে এই জায়গা থেকে সরে যায় আর কি। তারপরে আবার একটা ছবি সকালবেলা আমাকে আরও পাঠানো হয়েছে, এই অঞ্চল থেকে পাঠিয়েছেন কেউ বা কারা। তখন ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ছাদের উপরে চালের উপরে মাথার খুলি সহ কিছু হাড় দেখা যাচ্ছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করছে, দেখছি, আমিও নিজেও দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি করে এখানে মাথার খুলি হাড় ফাড় পড়ে আছে। কীভাবে আসলো পুলিশ এই বিষয়টাকে তদন্ত করছে, কিভাবে এখানে আসলো ওনাদের বিষয় আছে, ওনারা তদন্ত করে দেখছে। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज पूरा पश्चिम बंगाल लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में भी देखा लॉकडाउन का असर। कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी के तहत आज पूरा पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल, पूरा क्षेत्र लॉकडाउन चल रहा है। उसका असर आज सिलीगुड़ी के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि सिलीगुड़ी अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में है। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर सिलीगुड़ी में संपूर्ण वार्डों में लॉकडाउन चल रहा है। बाजार, हाट, दुकान सब कुछ बंद है। आवागमन भी पूरी तरह से ठप कर दी गई है। जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर सब कुछ लॉक है। पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।
राफेल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से भारत पहुंचा। अंबाला में 5 राफेल की हैप्पी लैंडिंग, वाटर सैल्यूट से किया गया स्वागत। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गया है। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर हैप्पी लैंडिंग हो गई है। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अंबाला एयरबेस पर परिक्रमा की। अंबाला में धूप निकलने की वजह से लैंडिंग में कोई समस्याएं नहीं हुई। राफेल के भारत पहुंचने पर पीएम मोदी ने संस्कृत में श्लोक से किया राफेल का स्वागत। अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, राष्ट्र संरक्षम पुण्यम राष्ट्र संरक्षम वर्ततम राष्ट्र संरक्षम यजो दृष्टो नैवच नभ स्पृशम द्वित्वम स्वागतम। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल की लैंडिंग के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय वायुसेना और शक्तिशाली हो गई है। भारत के दुश्मनों को अब सावधान हो जाना चाहिए। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के बाद 5 राफेल सुपरसोनिक विमानों को वाटर सैल्यूट दिया गया। वाटर कैनन से यह सलामी दी गई। एयरबेस पहुंचने के बाद राफेल और इन्हें फ्रांस से लाने वाले जाबाज पायलटों का वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने स्वागत भी किया। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस के 31 नए मामले सामने। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार कालचीनी में 18, हासीमारा में 6, मधु चाय बागान में 1, लाताबाड़ी में 1 एवं जैंगो में कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। वहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामले से स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोग काफी चिंतित है। कोरोना संक्रमित मरीजों में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। उन्हें सील तोरसा सेफों में ले जाया जा रहा है और जिनमें कोरोना के लक्षण मौजूद है उन्हें तोपसीखाता कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। गौरतलब है कि अलीपुरद्वार जिले में केवल साताली ग्राम पंचायत इलाके में कोरोना के 7 नए मामले पाए गए हैं। साताली ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज बेरुआ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 7 संक्रमितों में 6 हासीमारा एवं 1 मधु चाय बागान इलाके के रहने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इन इलाकों में सड़कों पर बांस का बैरिकेड लगाकर यातायात बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों से कोरोना महामारी को लेकर अधिक जागरूक रहने का आह्वान किया जा रहा है। কালকে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে খবর পেলাম যে হাসিমারায় 6 জন আর 1 জন মধুবাগানে মানে সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় টোটাল আরও 7 জন পজিটিভ কেস এসেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট হিসাবে। সেই জন্য আমরা মানে খুব চিন্তিত এই বিষয় নিয়ে। ওই চিন্তার কারণেই আমরা এখন মানুষকে সচেতন করছি যে নিজেদের সেফ নিজেরা বজায় রাখুন, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সরকারি গাইডলাইন মেনে চলুন আর স্যানিটাইজার করুন। ওই এলাকাগুলো মোটামুটি আমরা কন্টেনমেন্ট জোন যেহেতু বিডিও সাহেব করে দিয়েছেন আমরা ওখানে ব্যারিকেড করে দিয়েছি এবং আশেপাশে যত জনসাধারণ আছে তাদেরকে বলেছি আপনারা বাড়িতে থাকুন, বিনা প্রয়োজনে একদম বিনা প্রয়োজনে আপনারা বের হবেন না। হাত জোর করে আমরা বলছি, আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি, নিবেদন করছি, আপনারা হাত জোর করে বলছি এখানকার হাসিমারা বাসিন্দাদের আপনারা বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। কারো কিছু যদি কোনো রকম প্রয়োজন হয় আমরা সবাইকে বলেছি, আমার কাছে সবার আমার নম্বর সবার কাছে আছে, আমাদেরকে যদি কন্ট্যাক্ট করে তাদের যা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে আমরা বাড়ি পৌঁছে দেব। এই জিনিসটা এমন একটা ভয়ঙ্কর রোগ, কিন্তু তাও প্যানিক হওয়ার দরকার নেই, কেননা এটা নিজে ঠিক থাকলে নিজে যদি সচেতনতা যদি বজায় রাখি তাহলে এই রোগ কোনো ব্যাপার নাই লড়াই করা। सिलीगुड़ी शहर का विधान मार्केट गुरुवार से खुलेगा। गुरुवार से सिलीगुड़ी शहर का विधान मार्केट फिर से खुल रहा है। बुधवार को विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से पूरे बाजार परिसर को सैनिटाइज किया गया। सिलीगुड़ी शहर व विधान मार्केट इलाके में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विधान मार्केट को बंद कर दिया गया था। आज विधान मार्केट व्यवसायी समिति के द्वारा आगामी कल से बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बुधवार को पूरे बाजार परिसर को सैनिटाइज किया गया। আমাদের আজকে 7 দিন 14 দিন হয়ে গেল আমাদের লকডাউন চলছে শিলিগুড়িতে। সেই লকডাউনের ইয়েতে আমরা আজকে পুরো মার্কেট আমাদের কালকের থেকে মার্কেট খুলবে, যার জন্য আমরা আজকে পুরো মার্কেটটাকে স্যানিটাইজার করছি। পুরো মার্কেটে স্যানিটাইজার করে তারপরে কালকের থেকে দোকানদাররা খুলবে। এর জন্য আমরা আজকে স্যানিটাইজারটা পুরো করি। 24 ঘন্টায় আমাদের মাইক চলছে। মাইকে আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে ডিস্টেন্স দূরত্ব বজায় রাখবেন, ক্রেতাদেরকে মাস্ক ছাড়া কোনোদিন কোনো জিনিস দিবেন না এবং দোকানদারও জানি মাস্ক লাগিয়ে হ্যান্ড গ্লাস লাগিয়ে স্যানিটাইজার ইউজ করে জানি দোকানদারি করে। এটা আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের মাইক আছে পুরো মার্কেটে, পুরো মাইকে বলা হচ্ছে এটা।
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तालाबंदी यानी लॉकडाउन का असर अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस महीने के दूसरे दिन सप्ताह का लॉकडाउन आज बुधवार को पूरे राज्य में लागू रहा। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज अलीपुरद्वार जिले में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई। अलीपुरद्वार जिले में कालचिनी, हांसीमारा, हैमिल्टनगंज, मादरेहाट समेत विभिन्न क्षेत्रों में तालाबंदी का व्यापक असर देखा गया। पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में गश्त भी लगाई और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। हालांकि इस बीच अलीपुरद्वार में लॉकडाउन काफी सफल रहा क्योंकि सभी दुकानें बंद थी और यातायात पूरी तरह से ठप रहा। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतरे रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा पिकनिक मना रहे 19 लोगों को किया गिरफ्तार। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इस महीने के दूसरे सप्ताह का लॉकडाउन आज बुधवार को पूरे राज्य में लागू था। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतरे थे। रायगंज के धुलियाबाड़ी, श्याम मोड़, धुलियाबाड़ी, ग्वालपोखर आदि इलाकों में उन्होंने गश्त कर लोगों को लॉकडाउन के बारे में सतर्क किया। कुछ लोग जो साइकिल, मोटरसाइकिल अथवा गाड़ी लेकर निकले थे उन लोगों को उन्होंने समझा बुझा कर वापस भेज दिया। लेकिन लॉकडाउन के बीच ग्वालपोखर में कुछ युवक मिलकर पिकनिक मना रहे थे। यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन है। यही कारण है कि उन्होंने इस पिकनिक मना रहे 19 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बीच रायगंज में लॉकडाउन काफी सफल रहा क्योंकि सभी दुकानें बंद थी और यातायात पूरी तरह से ठप रहा। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लॉकडाउन में नहीं रोक पा रहा है कोरोना वायरस का कहर। उत्तर दिनाजपुर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1000 के पार। कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ही लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो काफी गंभीर चिंता की बात है। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 को पार कर गई है। जिले में 2 शहर इस्लामपुर और रायगंज में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन दोनों शहर में 3 लोगों की मौतें हो चुकी है।
अकेले रायगंज में ही संक्रमित मरीजों की संख्या 150 पहुंच चुकी है। लॉकडाउन रहने के कारण भले ही आज भीड़ नहीं है, लेकिन अन्य दिनों सड़कों पर भारी भीड़ देखी जाती है। यही कारण है कि रायगंज में संक्रमितों की संख्या काफी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1051 पहुंच चुकी है, जिनमें से 655 लोग ठीक हो चुके हैं और 396 मरीजों का इलाज कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमित मरीजों की संख्या में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या काफी ज्यादा है। ग्रामीण इलाके में कोरोना को लेकर देखी जा रही है अधिक जागरूकता। बाजार बंद, सड़कों पर लगाया गया बांस का बैरिकेड। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण इलाके के लोगों में ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायत इलाकों में लोग काफी जागरूकता के साथ कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पातकाटा ग्राम पंचायत के रांधामाली, कालीगंज व पहाड़पुर ग्राम पंचायतों के डेंगुआझार बाजार समेत सभी बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। कहीं कोई दुकानें खोली नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए मुख्य रूप से स्थानीय व्यवसायियों एवं ग्रामीणों ने मिलकर बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। जलपाईगुड़ी के खरिया ग्राम पंचायत के पांडापाड़ा, कालीबाड़ी बाजार, केनल बाजार, देवनगर बाजार, पंगावा, 73 मोड़ समेत सभी बाजार इलाकों में बांस का बैरिकेड लगा दिया गया है। ব্যবসায়ীর থেকে তো এই লকডাউনটা খুবই মানা দরকার। চারিদিকে যেভাবে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে, এমনকি পুলিশ প্রশাসন থেকে আমাদের অর্ডার, সেই অর্ডার মতন আমরা কাজ করতেছি। তবে এই লকডাউনটাকে আমরা খুবই সমর্থন করি। কেউ যেন গ্যাদারিং না করে, এমনকি সবাই সতর্কভাবে থাকে। হ্যাঁ, সবাইকে যেন সবাই বুঝায়। হ্যাঁ, এটা কি বাজার? এটা ডেঙ্গুবাজার বাজার। আপনারা কি লকডাউন নিজেরা? হ্যাঁ, আমাদের দোকান আছে, আমরা নিজেরাও এই লকডাউন মানতেছি। হ্যাঁ, আমরা প্রশাসনের কথা শুনতেছি, এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যা বলতেছে, এমনকি আমরা ব্যবসায়িক সমিতির থেকেও আমরা সব এই উদ্যোগ নিচ্ছি। হ্যাঁ, এটাকে আমরা ভালো মনে করি। না, আজকে সব কেউ খুলবও না, কাউকে খুলতেও দেবো না। আজকে সব লকডাউন। আগে আমরা আলাদাভাবে 7-6 দিন লকডাউন করছি। হ্যাঁ, একজন ব্যবসায়ী, হ্যাঁ, ডাক্তার ছিলেন উনি। হ্যাঁ, শুনছিলাম যে করোনা ধরা পড়ছে, তার জন্য আমরা লকডাউন 6 দিন করছিলাম। আজকে আমরা সরকারের তরফ থেকে এটা বন্ধ রাখছি। मालदा में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सड़क पर कान पकड़कर कराई उठक बैठक तो कहीं चली लाठियां। लॉकडाउन के आरोप में 20 लोग हिरासत में। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान मालदा जिले में पुलिस बुधवार सुबह से ही लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतती देखी गई। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कहीं कान पकड़कर उठक बैठक कराई तो कहीं लाठियों की मदद से लोगों के होश ठिकाने लगाए। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार को राज्य भर में लागू संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर मालदा पुलिस आज सुबह से ही सड़कों पर उतरकर अभियान में जुटी हुई थी। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने आज मालदा शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त लगाकर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। शहर के विभिन्न इलाकों में काफी संख्या में लोगों को बेवजह सड़क पर बाहर निकलते देख पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इनमें से कई लोगों को पुलिस ने सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई। वहीं पुलिस को लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए लाठियों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न इलाकों से लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कम से कम 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी ओर लॉकडाउन के मद्देनजर आज शहर के विभिन्न इलाकों में दुकान पाट बंद है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना ने मार गिराए 2 घुसपैठिए। जाबाजों ने आतंकवादी घुसपैठ को किया नाकाम। जानकारी के मुताबिक नौशेरा सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। वहीं एनकाउंटर में एक आतंकवादी घायल हो गया। भारतीय सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि मंगलवार को पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी LOC पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सेना के साथ एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। मछुआरों की खुली किस्मत, जाल में फंसी 16 लाख रुपए की मछली। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में दीघा इलाके में सटे बंगाल की खाड़ी में एक फ्लाइंग शिप की तरह देखने वाली एक मछली स्थानीय मछुआरों के जाल में फंस गई। उसे बेचकर एक ही झटके में लाखों रुपए मछुआरों ने कमा लिए। यह मछली करीब 800 किलोग्राम की थी। मछुआरों ने उस मछली को 2100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है। इस विशाल मछली को ट्रेलर की मदद से जाल के किनारे लाया गया। इस मछली का नाम मछुआरों ने चिलशंकर फिश बताया है। ऐसी मछली जापान और अन्य देशों में सप्लाई की जाती है और जहां इसके दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस विशाल मछली को पकड़कर मछुआरे बेहद खुश है और उनकी कमाई भी लाखों के ऊपर चली गई है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में घेरा चीन को। सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों को की तैनात। लद्दाख में चीन की हरकत को बर्दाश्त न करने का संदेश देते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में लगभग सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। 15 जून को
गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद यहां तैनाती शुरू हो गई थी, जो अब पूरी कर ली गई है। सूत्र के अनुसार चीन की हरकत के जवाब में भारत सरकार चौतरफा अभियान छेड़े हुए है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सतर्क करने के साथ ही कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी चीन को घेरा जा रहा है। चीन को संदेश दिया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में उसके घुसपैठ को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख करीब रोज आपस में संपर्क कर चीन को स्पष्ट संकेत देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल में चीन को जवाब देने की तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।